Good evening, all of you. Myself, Shishir Kumar Singh, Assistant Professor at University. Firstly, I thank to Professor Girish Ranjan sir, Head of Department Religion and Mass Communication. Good evening, all of you. Myself, Shishir Kumar Singh, Assistant Professor, IP University. Before we start the before we start the class, I especially thank to Head of Department Professor Girish Ranjan Tiwari sir and research scholar Kishan Kashyap ji. Today my class topic is television production. So here are two terms we are using television production. Before know about what is a television, you should know about what is a production. Here is three phase of the production: pre-production, production, and post-production. So what is a pre-production? So bifurcate the two things: pre and production. Pre means पहले, then production. Production means on spot, on the live, and post production. Post means what is the post? Post means बाद में, then production जो बाद में production किया. So we click the first things. What is a pre-production? When you talk about the pre-production, there is a lot of subtitles in this one. What is your topic? Topic means what on what topic you are going to work. What is your story? In pre-production, firstly you decided your topic, yeah, your story, yeah, that we call the what is your idea. Okay, so firstly we are decided in the group what is our topic to going to produce. Okay, after the topic you are going to select another thing that's called brainstorming, because the production is not a one man army man. During the production time, we have the huge team. Someone the good in the scripting, someone good in the camera and cinematographer, someone good in the PR managing, someone good in the post production work. So during the pre production work, after decided what kind of the topic we are going to work, so we are decided what is the topic. After decided topic, we are going to brainstorming. What is the brainstorming? Brain means dimag. So, with the help of the brain, we are going to find out what is the actual topic, how to polish our choose topics, है ना? By what kind of area, by what of element, by what of the things you are polish your topic. So there is one formulas. That formula is generated by me. That name is SAMS. SAMS. What is the S? Whenever talk about the S, S means story. What is our story? During the brainstorming, there is a five. We are thinking that what is our topic? Huh? Where is our topic? What is the purpose of the topic? So you are using the one formula. That formula's name is SAM. SAM. The SAM S for story. So firstly we are decided with the colleague what is our story. So as far you are clear what is actually our story. Then A. What is a A? A means audience. Who is our audience? ठीक है, after decide our story, who is our audience? A is audience. Then again the M means message. With the help of the story, with the help of the with the target of the audience, what are going to message to him, what kind of the convey message to deliver to him. So M for message. Okay, then last is again S means style. What kind of style going to produce with the audio broadcasting, with the book video broadcasting, with the animation.
with the 2D animation, and with the new media. The same during the whole production, Sam play a very vital role and very important role to produce any kind of television production. So we are talking about the pre-production. The pre-production in pre. So what is say? First you decide a topic, then brainstorming. Okay, after brainstorming, we are decided. Okay, this is our topic. This is our topic importance. This is a actual thing. So that's why we're going to work on this again. Again, we are going to work on mind mapping. What is mind mapping? What is use of the mind mapping? When I talk about the mind mapping, so its work with the help of the mind map, you have decided most in this time you are mostly are using the Google Map. Why using the Google Map? What is the purpose of the Google Map? In this era, the Google why using Google Map for the accurate destination, reach to accurate destination without any disturbance, without any traffic. So same things apply in the production time. So after so we are deciding after brainstorming we are going to opt the mind mapping. So what is mind mapping? With the help of the mind mapping we decide what kind of way you are going to choose. Okay, so what kind we are going to choose, like so what kind of we're going to choose? So like why the topic, when the topic, where is the topic? Okay, my topic is that way you are going to decide the one topic fashion. You are taking the one topic fashion to produce any kind of work. So what is the fashion? Why the fashion? Where the fashion? We have find out three elements. What, where, why. Okay, what, where, why. After what, where, why, we decided. Okay, what is the fashion? Then where is the fashion? Why the fashion? Okay, then decided. Okay, what is the fashion? This is kind of the fashion. फिर where the fashion? फिर why the fashion? We have decided. But if you have decided the fashion in marriage party, so nobody going to showing interest. अरे यार ये जनरल बात है कि मैरिज में फैशन होता है. Okay, fashion in college. After college, everyone using this kind of things. Why not the fashion? So but we are whenever you're talking about the fashion in the school, so our mind going to click fashion in school. How it is possible to involve fashion in school? So our production team going work on it and searching this element, what kind of the fashion involved in that thing. So you find that the some student using the narrow bottom pant, some girls using earrings, some students using kind of the accessories, kind of the gadget. So school for what? School form the uniformity. It means you are equal in front of the school, yeah, in the school premises. So what is the actual things are coming? So okay, then you got the some elements, good elements. Yes, it is good. So if after that you are going to work on the fashion in school. So fashion in school. So whenever you talk work out of the fashion in school, so most of parents, most of people showing the interest, his and her interest on that topic. Oh yes, it is things to fashion in the school. ओके दिस इज नॉट गुड. सो अर्ली मॉर्निंग क्या होगा, सब अपने बच्चों को चेक करेंगे. देखो मेरा बच्चा किस तरीके जा रहा है, बाल का स्टाइल का रखा है, पैंट के किस हिसाब से रख रहा है, क्या गैजेट को यूज तो नहीं कर रहा है या किस तरीके से. सो ये इसके बाद हम एक जनरल स्क्रिप्ट लिखते हैं. जनरल स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं प्री प्रोडक्शन में. जनरल स्क्रिप्ट में आते हैं और जनरल स्क्रिप्ट में हम क्या काम करते हैं कि हम एक जनरल स्क्रिप्ट बना लेते हैं.
एक्चुअली हमें शो कहाँ का पूरा पूरा शूट कहाँ करना, प्रोडक्शन टीम शूट कहाँ करने जाएगी। फिर इस चीज में डिसाइड करने के बाद इसमें क्या होगा, डिसाइड करने के बाद अब एक स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। स्क्रिप्ट का भी टेबल बनता है, सीरियल नंबर, सीन नंबर, डायलॉग, डायलॉग टाइमिंग, शूटिंग एरिया इंटीरियर या एक्सटीरियर, देन उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक्स। ठीक, ये काइंड ऑफ हम उसमें टेबल्स बना लेते हैं और इस टेबल के थ्रू हम सीन वाइज या सीरियल वाइज हम उस चीज़ों को शूट करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम सीरियल वाइज जो हमने डिसाइड किया अपने स्क्रिप्ट में उसी को शूट करें, हम किसी भी सीक्वेंस को शूट कर सकते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग लाइन में हम क्या करते हैं, उसको जाके हम पूरा के पूरा उसको एडिट कर लेते हैं। जैसे ही हमारी स्टोरी बोर्ड तैयार हो गया, तो स्टोरी बोर्ड तैयार होने के बाद हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं हम इक्विपमेंट को सीखते हैं। ठीक है, और उस इक्विपमेंट इट मीन्स कि हम जो भी कैमरा यूज करने जा रहे हैं, जो भी ट्राइपॉड, जो भी लाइट जाते हैं, हम उसका थोड़ा सा चीज़ें को क्लियर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसकी बैटरी सही, उसका लेंसेज सही है, उसका ट्राइपॉड सही है। देन हमारे को हम रेकी करते हैं। रेकी इन सेंस कि हमें कहाँ जाके शूट करना है। अब जहाँ हमें जाके शूट करना, उस प्लेस को रेकी कर लेते हैं 1 डे बिफोर कि हमें कल जो करना है वो चीज़ रेडी है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जिस हिसाब से हमने सोचा वो चीज़ है कि नहीं है, फिर दिन हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके रेकी करते हैं। और ये हमारे जो मेजर मेजर एलिमेंट्स मैंने जो बताया है कि टॉपिक डिसाइड करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, माइंड मैपिंग तैयार करना, जर्नल स्टोरी, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर इक्विपमेंट को क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट को तैयार कर लेना होता है, इक्विपमेंट को हमें चीज़ें सीख लेना होता है कैसे हमें यूज करना है। देन इसके बाद हम प्रोडक्शन में चले आते हैं। ये चीज करने के बाद हमारे पास जो जो स्क्रिप्ट होता है वो यूनिवर्सल होता है। अगर कैमरामैन उसको देखे तो समझ ले हमें कौन सा शॉट्स बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना होता है कि अगर उसी को डायरेक्टर देखे तो ये समझ ले हमें कौन सा शूट का सीन क्या रखना है। देन आउट पोस्ट प्रोडक्शन वाले की वजह सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस से हमें एडिट करना है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, जो चीज हमने प्री प्रोडक्शन पे काम कर लिया है उसी प्री प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन पे शूट करते हैं। ऑन स्पॉट जाके जो हमने रेकी किया है उस रेकी प्लेस पे जाके उन सब चीजों को शूट कर लेते हैं। अब शूट करने के बाद तो चीजें हम क्या करते हैं, या तो सीक्वेंस शूट करते हैं या तो हम अनसीक्वेंस भी हम उसको क्या करते हैं, शूट कर सकते हैं। अब चीजों जब हमारा प्री प्रोडक्शन जितना अच्छा हमारा पेपर वर्क होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज रियल में होता है वो रील में नहीं आता। तो उसके लिए प्री प्रोडक्शन के पेपर्स में ऑन द प्री प्रोडक्शन इन द प्री प्रोडक्शन ऑन द पेपर यू हैव टू वर्क ऑन वेरी हार्ड, है ना, विद बिकॉज हार्ड वर्क इज ऑलवेज पे। इन प्री प्रोडक्शन आपने जितना अच्छा काम किया होगा वही चीज प्रोडक्शन में आएगा, अदरवाइज रियल और रील में बहुत सारे डिफरेंसेज आ जाएंगे। देन इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्शन में जो चीज हमने शूट कर लिया उसको फिर आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स कि अब जो हमें काम करना है वो पोस्ट प्रोडक्शन में करना है। अब पोस्ट प्रोडक्शन में क्या करना है, पोस्ट प्रोडक्शन में अगर हमने जो भी चीजें शूट किया उसको डंप करना है। डंप मीन्स सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे, या हम एफसीपी पे कर रहे हैं तो एफसीपी सॉफ्टवेयर होता है फाइनल कट प्रो, या हम एडोब प्रीमियर एलिमेंट, हम ये दो हमारे पास एडिटिंग जो मेजरली आजकल यूज होते हैं, इस पे हम चीज़ों को एडिट करते हैं। तो हमने अपने क्या किया कि वर्क स्टेशन के सिस्टम पे हमने जो भी डॉक्यूमेंट शूट किया वीडियो उसको हम डंप कर लेते हैं, एक जगह सेव करके उसका फाइल नेम दे देते हैं। ठीक है, विद डेट हमने डाल दिया। और जो हमने लॉग शीट तैयार की प्री प्रोडक्शन में, जो हमने जो क्या कहते हैं कि जब स्टोरी बनाते हैं उसमें सीरियल वाइज जो हमने लॉग शीट तैयार की वो लॉग शीट को निकाल लेते हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं कि शूटिंग की है, अब हम किस फॉर्मेट पे क्या कहते हैं कि उसको हमें एडिट करेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम किस सॉफ्टवेयर में, या तो एफसीपी फाइनल कट प्रो या एडोब प्रीमियर प्रो में, उसमें बहुत CS5 CS7 CS11 बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, है ना। तो उस पर हम इस पर नॉलेज हम उसको उस पर ले आते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास टाइम लाइन, दो टाइम लाइन होते हैं, एक ऑडियो टाइम लाइन होता है, एक वीडियो टाइम लाइन होता है। तो हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं कि उसको ड्रैग इन करके टाइम लाइन पे ले आके उसको हम एडिट करते हैं। अगर जब भी हम कोई न्यूज पैकेट को एडिट करते हैं, कोई भी काइंड ऑफ न्यूज पैकेट हो, उसको हम एसोसिएट कट एडिट करते हैं। व्हाट इज एसोसिएट कट? एसोसिएट मींस जुड़ा हुआ।
इट मीन्स जैसा आपका विजुअल हो वैसा ही आपका उसमें ऑडियो होना चाहिए। इट मीन्स कि विजुअल कह रहा है इंडिया गेट के बारे में, दिख रहा है दिल्ली के इंडिया गेट विजुअल में, आप बात करो कुतुब मीनार की, नहीं, जैसा विजुअल हो ऑडियो उसी को होना चाहिए, उसको हम वॉइस ओवर कहते हैं। तो एसोसिएट एडिटिंग करते हैं जब हम वीडियो प्रोडक्शन में करते हैं। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो एज पर जो सीन है उसके हिसाब से जो हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से हमारा क्या होता है कि चीजें उस पर रिकॉर्ड होती हैं, और मतलब चीजें उस पर बनती हैं और उसके हिसाब से एडिट होते हैं। अब एडिटिंग पे ले आए हम। एडिटिंग पे हम क्या करते हैं, पहले डालते हैं डिजॉल्व इन। डिजॉल्व इन से हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। पहले हम कट टू कट एडिट करते हैं। वर्ल्ड में सबसे फेमस वीडियो एडिटर वही होता है जो कट टू कट एडिट करते हैं। तो कट टू कट, इससे पहले हम रफ कट कर लेते हैं। रफ कट इन द सेंस कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, जो चीजें नीचे डाली हम रफ टू कट सीक्वेंसेस टाइप से लगा लिया। इसके देन बाद हम कट टू कट एडिट करते हैं। कट टू कट एडिट में अगर हमें कहीं भी प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम वहां पे बीच बीच में इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, हम दो चीज डालते हैं, एक इफेक्ट और एक इफेक्ट डालते हैं, एक ट्रांजेक्शन डालते हैं। ट्रांजेक्शन क्यों डालते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होता है, राइट नाउ रिज्यूम माय द classes, so you are working on the post production area. So what I'm telling about, the with the help of the post production, yeah, on the topic of the post production you have to dump your all item on your computer system, yeah, workstation system, and decided a kind of sorry, some due to some technical error you are cut out. So again resume our classes on the post production. So हम post production पे काम कर रहे थे. So what is the actual things going on the post production? All production work items, all production footage we dump into the our computer या workstation system. Then after, with the help of the director, with the help of the video editor, what is your what is expertise editing things, they are good in AppCP, is good on the Adobe Premiere Pro. So first we decided. Then there were two provision editing system. There were two tracks, that's called audio track timeline और वीडियो टाइमलाइन। जैसे हम ऑडियो टाइमलाइन पे आते हैं तो हमारे पास ऑडियो वाले जो टाइम्स हैं, जो फ्रेम्स हैं वो ऑडियो पे चला जाता है, और वीडियोज वाले फ्रेम जो होते हैं वो वीडियो पे चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि वी आर डिसाइडेड, पहले हम रफ कट करते हैं। क्या करते हैं, रफ कट करते हैं। हमारा जो स्टोरी बोर्ड है, हमने स्टोरी बोर्ड में पहले डिसाइड कर लिया कि सीन 1 क्या, सीन 2 क्या, सीन 3 क्या, सीन 4 क्या, सीन 5 क्या, सीन 6 क्या, सीन 7 क्या। एज पर स्टोरी बोर्ड हम उसको रफ कट कर लेते हैं। इट मीन सीक्वेंसिंग में लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। रफ कट में हमारे पास एक आइडिया आ जाता है, बेसिक आइडिया आ जाता है कि एक्चुअली हमें उस पर क्या करना, व्हाट काइंड ऑफ गोइंग ऑन दैट। अब हमने क्या कर लिया, उस पर रफ कट करने के बाद हम कट टू कट एडिट कर लिए। कट टू कट एडिटिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडिटिंग होती है, बिकॉज कट टू कट एडिटिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता है। ट्रांजिशन क्या होता है कि हम जब कोई गलती होती है, कोई चीज़, उसको छुपाने के लिए हम उसको दो कट के बीच में लगाते हैं। हमारे पास दो चीज़ होता है, एक इफेक्ट होता है, एक ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन क्या होता है, जहाँ पे दो कट होता है, हम टाइम लाइन पे कट मारते हैं, जहाँ पे दो क्लिप कट होता है उसके बीच में हम ट्रांजिशन लगाते हैं, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इन सेंस कि डिजॉल्व इन लगा सकते हैं, या आपने देखा होगा बहुत से शादियों में ऐसे घूमते घूमते किसी का नाम आता है, वट एवर चीज, जैसे इफेक्ट आ जाता है बीच में, या कोई कर्टन खुल जाता है, या किसी के नाम किसी चीज़ से बाहर आता है, दैट इज ट्रांजिशन। सेकेंड वन इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है कि हम इफेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में लगाते हैं, चाहे तो हम पूरे के पूरे टाइम लाइन पे एक सिंगल इफेक्ट लगा लें। अगर लगान मूवी की हम बात करें तो लगान मूवी पे सीपीआई इफेक्ट है। उस मूवी को देखने में ऐसा लगता है हिस्टोरिकल टाइप से, मतलब हिस्टोरिकल उसमें टच आता है। येलोइश, जिसको हम टंगस्टन लाइट बोलते हैं प्रोडक्शन की भाषा की बात करें, इफ यू आर यूजिंग द प्रोडक्शन लैंग्वेज, द टंगस्टन लाइट, टंगस्टन में येलोइश लाइट है ना, हॉट लाइट है ना, टंगस्टन इट्स कम अंडर द हॉट लाइट। सो उसका इफेक्ट पूरा का पूरा क्या होता है कि हॉट हो जाता है। तो टंगस्टन लाइट उसमें आपको
दिखता है, या तो टंगस्टन, तो इसको हम सीपीआर बोलते हैं। येलो देखो हम अपने फ़ोन के मोबाइल में एडिट करते हैं तो सीपीआर से एक ऑप्शन आता है, उससे करने हमारे फ़ोटो पे जो येलोइश इफेक्ट आ जाता है। सो ये चीज़ ध्यान रखें कि दो चीज़ होता है, इफेक्ट और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि दो कट के बीच में हमें जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होता है तो हम उसमें ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। इफेक्ट हम पर्टिकुलर क्लिप पे अलग अलग लगा सकते हैं, किसी में चाहे डे लाइट लगा सकते हैं, किसी में चाहे तो नाइट लाइट का ऐसे लगा सकते हैं, किसी में हम सीपिया मोड कर सकते हैं, किसी में भी हम ट्रांसफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ों के हम चीज़ें यूज करते हैं। मैंने बताया था कि टेलीविजन प्रोडक्शन, जब न्यूज़ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम एसोसिएट एडिटिंग करते हैं। एसोसिएट एडिटिंग क्या होता है कि एसोसिएट एडिटिंग में जैसा ही आपका विजुअल होता है उसी वैसा ही उसका वॉइस ओवर होता है। आपको वॉइस ओवर पता होगा कि जब हम कोई पैकेज बनाते हैं तो पहले एंकर लिंक होता है, एंकर लिंक होने के बाद हमारे पास क्या होता है, VO1। VO1 में क्या होता है, वॉइस ओवर होता है और उस वॉइस ओवर के अनुकूल है ना विजुअल होता है, दैट इज एसोसिएट एडिटिंग। जो विजुअल जो भी वो बोल रहा है उसी के हिसाब से विजुअल होता है। देन हमारे पास बाइट आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास VO2 मतलब वॉइस ओवर 2 उसका विजुअल होता है, और लास्ट में क्या होता है कि PTC होता है। PTC मतलब पीस टू कैमरा। जब हम पैकेज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एंकर लिंक, एंकर ने जो बोला उसको हम पहले रख लिए, फिर एंकर के बाद हमारा कट दिख लगता है, और कट के बाद हम तुरंत आ जाते हैं किसी विजुअल पे। तो एंकर का जो फॉर्म होता है वो स्टूडियो फॉर्म होता है, वहाँ की लाइटिंग और विजुअल वीओ की जो लाइटिंग होती है, जो विजुअल की लाइटिंग, दोनों डिफरेंस होते हैं। उसको चीज़ को गैप को छुपाने के लिए हम ट्रांजिशन का यूज करेंगे। जैसे उसके बीच में हम ट्रांजिशन डाल दिए, तो जैसे हम कहते हैं कि नमस्कार मैं हूं सुशील कुमार जी, आप खबरें देख रहे हैं ये। चलिए बात करते हैं कोरोना के हाल दिल्ली में क्या है, नैनीताल में क्या है। और जैसे नैनीताल की बात करते तो एक मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ, तो स्टूडियो से जब नैनीताल के झील में जाते हैं या उस एरिया में जाते हैं मॉल रोड पे, तो वहाँ की लाइट डिफरेंस, उस लाइट को छुपाने के लिए हम एक ट्रांजिशन डालते हैं, और उस ट्रांजिशन जैसे डालते हैं तो हमारा स्टूडियो से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है दूसरे जगह को। अब क्या हुआ, अब ट्रांजिशन स्टार्ट हो डाला, अब हमने दिखा दिया वॉइस ओवर 1 VO1 कि नैनीताल के नैनी झील के पास जो मॉल रोड एरिया है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है या सैलानियों को होता है, वहाँ पे कोरोना के आने की तरह बिल्कुल शांत है। तो एक वो फॉर्म दिखाया। फिर हमारे पास आता है VO2। अब उसमें बाइट 1 आता है, किसी के एक बाइट ले लिया और किसी ने बताया हाँ कोरोना आना चाहिए, फिर VO2 आ गया, फिर VO2 दिखा दिया। लास्ट में फिर PTC आता है। PTC में क्या होता है कि वो पीस टू कैमरा होता है, जिसमें रिपोर्टर क्या करता है कि अपनी बात को तो कंक्लूड, पूरे के पूरे चीज़ को कंक्लूड करता है। अब ये हम एडिटिंग में हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर करते हैं, ये प्री प्रोडक्शन में हम तैयार कर लेते हैं। जब रिपोर्टर लाया न्यूज़ ला कर एरिया असाइनमेंट पे, उस असाइनमेंट के ऊपर लेके आउटपुट क्या होता है तो पूरी पूरी खबरें लिखता है। वो खबरें करने के अनुसार, उसी खबरें के अनुसार उस पर विजुअल ढूंढा जाता है। विजुअल ढूंढने के बाद उसको फिर जो ग्राफिक तैयार किया, वो ग्राफिक तैयार होने के बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन में आता है फाइनल एडिट करने के लिए। वो एडिट होने के बाद PCR में चला जाता है ब्रॉडकास्ट होने के लिए। तो अब हमने क्या किया, एडिट कर लिया। अब हमने अगर न्यूज़ पैकेज एडिट किया है और न्यूज़ चैनल के लिए एडिट किया तो उसको हमें ब्रॉडकास्ट करना है। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या, हमारा जहाँ एडिटिंग खत्म होगा हमने PCR को कनेक्ट करा दिया और PCR एज पर शेड्यूल उसको ब्रॉडकास्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो लेके न्यूज़ पैकेज के लिए, लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कोई शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो आपने जो स्क्रिप्ट डिसाइड किया है उस स्क्रिप्ट को आपने शूट किया। उसको शूट करने के बाद आपने एडिटिंग टेबल पे बैठ के विद द सीक्वेंसिंग से आपने उसको एडिट कर लिया। या तो आपने फाइनल कट प्रो पे एडिट किया या तो एडोब प्रीमियर एलिमेंट पे, आपने सारे उसमें एडिटिंग कर लिया, जिसमें ट्रांजिशन, इफेक्ट, मास्किंग, या लास्ट में जो हम क्रेडिट रोल डालते हैं। देखिए दो चीज़ होता है, एक क्रेडिट रोल होता है, एक क्रोल होता है। रोलिंग क्या होता है, रोल होता है नीचे से ऊपर जो जाता है वो रोल होता है। रोलिंग होता है ना ऐसे, इट मीन्स रोल नीचे से ऊपर होते हुए जाता है, वो रोल होता है। क्रोल जो टीकर आता है, जो इसके नीचे जो आप देखते होंगे कि टेलीविजन के नीचे ऐसे जो खबरें जाती हैं उससे क्रोल करते हैं। तो हमें कुछ एडिटिंग में क्या करना है, तो उसमें एक टेक्स्ट ऑप्शन आता है, उस टेक्स्ट में जाते हैं, ऑप्ट करते हैं। ऑप्ट करने के बाद हमें क्रेडिट ट्रायल क्या करना है कि रोल करना, क्रेडिट ट्रायल रोल होता है। और कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है नीचे वो जाता है, वो क्रोल होता है। तो रोलिंग एंड क्रोलिंग में जो डालना है। इसके बाद हमें अगर क्या कहते हैं कि किसी चीज़ का अगर इंग्लिश है तो हिंदी पे हम लिख सकते हैं, या हिंदी है तो इंग्लिश, हमें जो भी चीज़ इसमें अगर टेक्स्ट डालना है
या किसी का नाम डालना है या एंस्टन डालना है, तो हम उसको उस एडिटिंग में करते हैं। देन हम उसमें कुछ कलर करेक्शन करते हैं। कलर करेक्शन क्यों करते हैं? कलर करेक्शन ये करते हैं कि बहुत बार हमारे पास जो कैमरे में बहुत बार हम भूल जाते हैं वाइट बैलेंस करना। वाइट बैलेंस करने से क्या होता है कि कैमरे को ये समझ में आ जाता है कि हमें किस लाइट फेज में कितने लाइट अमाउंट में हमें काम करना है। सो अगर हमने कभी कहीं पे ऑटो में काम किया, कहीं पे हमने ऑटो क्या मैनुअल काम करना, तो उसका कलर कहीं ना कहीं मैच नहीं करता, तो उस कलर करेक्शन में क्या करते हैं कि हम कलर करेक्शन करके चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। तो कलर करेक्शन भी हमारा ऑप्शन कहाँ आता है? वो पोस्ट प्रोडक्शन के एडिटिंग टूल्स में आता है और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आता है। तो हम उसमें एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, कलर करेक्शन करते हैं। आपका नाम डालने के लिए मैंने एक्चुअली सब टाइटल, जो कि मान लो कि हिंदी मूवीज़ हैं और कहीं आप बाहर दिखा तो सब टाइटल्स आते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट आते हैं, उसको सब टाइटल करते हैं। तो सब टाइटल्स हो गया, क्रेडिट डाल दिया, क्रोल डाल दिया, ठीक है। उसमें अगर हमें कुछ चीज़ एरर है और उस एरर को ठीक करना है तो हम एडिटिंग टेबल पे ही सही करते हैं। एक होता है क्रोमा शूटिंग। क्रोमा शूटिंग मान लो कि आपने प्री प्रोडक्शन के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि हमें क्रोमा शूट करना है। मोस्टली जो टेलीविजन चैनल्स में जो एंकर आते हैं वो क्रोमा शूट पे आते हैं। क्रोमा शूट में क्या होता है कि हमारे बैक साइड में आपने देखा होगा स्टूडियो के ग्रीन या ब्लू कर्टन लगा होता है, उस पर 3 पॉइंट ऑफ लाइटिंग लगी होती है, जिसको की पॉइंट ऑफ लाइटिंग, जिसमें प्री की लाइटिंग, फील्ड लाइटिंग और बैक लाइट उसको बैलेंस करके इसके बाद वीडियोग्राफी होती है। और जब हम एडिटिंग में उसको लाते हैं तो हम पीछे कुछ भी चीज़ वर्चुअल लगा सकते हैं। एक्चुअल नहीं होता, उसको वर्चुअल स्टूडियो बोला जाता है। एक्चुअल स्टूडियो होता है जैसे मेरे पीछे ये सोफा है, कर्टन है, ये पीछे जो भी चीज़ है वो ये एक्चुअल है। बट वर्चुअल क्या होता है कि हम एक क्रोमा की के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन कर्टन या ब्लू कर्टन थ्रू हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया और हम उसमें एडिटिंग में जाके उस चीज़ को हम रिमूव करते हैं, उस एरिया को सेलेक्ट करके, और हमारे बैक साइड में कुछ भी दिखाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट के ग्राउंड से लोग रिपोर्टिंग करते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है, स्टूडियो में खड़े होते हैं, ग्रीन कर्टन पीछे होता है, और जैसे इसको एडिट करते हैं तो उसमें जाके एडिट किया जाता है और जैसे लगता है पीछे पूरा स्टूडियो में है, सॉरी स्टेडियम में है और बिल्कुल फील्ड में होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द क्रोमा एडिटिंग। तो ये भी क्रोमा एडिटिंग भी इसमें होता है, ये प्री प्रोडक्शन के स्क्रिप्ट में डिसाइडेड होता है। बाहुबली अगर आप मूवी देखेंगे तो वो मूवी की पूरी 70% मूवी क्रोमा पे है, 70% या 65% देन कुछ सेट तैयार किए गए। तो क्रोमा कट में एक अलग चीज़ होता है, ये भी प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो टेलीविजन में आपने जो स्टूडियो का जो चीज़ें होते हैं वो क्रोमा पे ही होते हैं, और उसके पीछे हम कुछ भी इसको वर्चुअल लगा सकते हैं एज पर स्टूडियो का न्यूज़ का जो हमारा टोन होता है या मूड होता है, जिस हिसाब से न्यूज़ होता है। तो प्री प्रोडक्शन में ये काम होता है क्रोमा का, क्रोमा एडिटिंग करने के बाद। क्रोमा एडिटिंग में उसके बाद हम न्यूज़ पूरे उसको हम एक HD फॉर्म, हमारे पास वर्जन होता है HD और HD, 4:3 HD मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन, HD 60:9 हाई डेफिनेशन। इसको हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन में हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। जो हमारी LED टीवी होती है वो 60:9 होता है, और जो हमारे पहले बॉक्स वाले टीवी होता है HD 4:3 होता है, इसको HD होता है। ये दोनों का अलग अलग रेशियो होता है, और हम इसको एज पर रिक्वायरमेंट हम उस फॉर्मेट में उसको हम सेव करते हैं। सेव करने से पहले हम सारे के सारे टाइमलाइन पे जो भी फुटेज है उस फुटेज को रेंडर करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात, रेंडर करना नहीं भूलना चाहिए। रेंडर प्ले ए मेजर रोल बिफोर सबमिट या बिफोर द कंपाइल योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू रेंडर योर टाइमलाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें क्या कहते हैं, बिना रेंडर वो सेव भी नहीं होता है। जैसे FCP में वो अपने आप रेंडर लेगा, इसके बाद ही सेव होगा, आप उसको नहीं कर सकते। बट बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं एडिटिंग के जिसमें कि विदाउट रेंडर भी सेव हो जाते हैं। रेंडर क्या होता है कि रेंडर में जो भी ग्लिचेज होती हैं, जो भी इसमें फ्लिकर्स होती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल फाइल जो होती है बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म पे होती है। उसमें अनसिंक्राइज एक होता है, सिंक्रोनाइज, अनसिंक्रोनाइज जैसी चीज़ें होने की संभावना बहुत कम होती है। जो चीज़ होती हैं बिल्कुल एक्यूरेट होती है। स्टार्ट एंड जो होता है, हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक रेंडर कर लेना चाहिए, और एक बार हमें प्रीव्यू कर लेना चाहिए कि हमने जो स्टोरी बनाई कहीं से कुछ है नहीं, कहीं गैप तो नहीं, कहीं ब्लैंक तो नहीं। ये सब करने के बाद हम उसको HD या HD डिवीजन में सेव करते हैं। सेव करना यहाँ डायरेक्ट सेव जैसे फाइल होती है वर्ड की वैसे नहीं होते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम एडिटिंग करने जाते हैं तो हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं वो इंपोर्ट फॉर्म में आती है। इंपोर्ट करते हैं तो चीज़ों को इंपोर्ट लाने के बाद, सारी फाइलों को इंपोर्ट करने के बाद उसका नाम देते हैं, फिर उसको टाइमलाइन पे लाते हैं, टाइमलाइन पे ला उसको रफ कट करते हैं। रफ कट करने के बाद
तो उसको हम क्या करते हैं कि कट टू कट एडिट करते हैं, कट टू कट एडिट करने के बाद उसको हम फाइनल एडिट करते हैं। फाइनल एडिट में हम उसमें इंस्टेंट डालते हैं, नेम टिकर डालते हैं, ठीक है, और उसमें अपना लोगो जो होता है कॉर्नर में लोगो डाल दिया, इसके बाद उसमें लास्ट में क्रेडिट रोल डाल दिया, रोल डाल दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर अगर क्रोमा एडिटिंग है तो क्रोमा एडिटिंग कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मास्क करना चाहते हैं, जिसको नहीं दिखाना, जैसे रैपिड शोस का चेहरा नहीं दिखाना होता, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को मास्किंग कर लिया। मास्किंग करने के बाद हमने उसके बाद किस स्टैंडर्ड में ब्रॉडकास्ट करना है या सेव करना है, HD या SD, उस फॉर्म में हमने उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने क्या किया कि अब उसको एक्सपोर्ट करेंगे। फाइनली उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। किस फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि MP4 में कर रहे हैं या DVD में कर रहे हैं या किस चीज़ों में कर रहे हैं, हमारे किस किस डिवाइस में इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम डिसाइड करते हैं, उसको पाथ दे देते हैं। और इसके बाद उसका हम शो केसिंग करते हैं। अगर CD फॉर्म में बना दिया तो उसको CD में डाल दिया, उसको कहीं शो करना है या कहीं ब्रॉडकास्ट में करना तो उसको PCR HDMI केबल के थ्रू हम उसको बेस्ट क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट PCI से कनेक्ट कर PCR से कनेक्ट करके उसको हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये मोटा मोटी फेज ऑफ प्रोडक्शन है टेलीविज़न प्रोडक्शन में। जिसमें प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन 3 चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत प्री प्रोडक्शन में होता है। मैं सभी स्टूडेंटों से, सभी लिसनर, सभी व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मोर वर्क ऑन द योर प्री प्रोडक्शन फेज, स्पेशली योर स्क्रिप्ट जितना अच्छा होता है। 3 इडियट मूवी में कोई भी कुछ ऐसा चीज़ें खबरें नहीं होती हैं, एलिमेंट्स नहीं होता है जो मतलब मूवी में कुछ ऐसी टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट वो अपने स्क्रिप्ट पे इतनी सक्सेस होती है। हाँ, बाहुबली है, लेकिन बाहुबली में जो भी आप देखोगे वो सारा क्रोमा पे किया हुआ है। तो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मेजर रोल करता है। प्री प्रोडक्शन में पहला जो हमारा टॉपिक होता है, आइडिया होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। इसके बाद माइंड मैपिंग करने की जरूरत है। माइंड मैपिंग करने के बाद आप क्या करते हैं कि माइंड मैपिंग कर लेते हैं। तो माइंड मैपिंग करने के बाद जब स्क्रिप्ट पे आते हैं तो आपको मजा होगा स्क्रिप्ट लिखना होगा, उसमें जो डायलॉग्स हो, उसमें जो शब्दों का चुनाव हो, उसमें जो वर्ड्स हो वो अपने आप में इम्प्रेसिव हो, है ना। आप इतने ऐसे क्लिष्ट या हार्ड वर्ड या डिक्शनरी वर्ड मत उठाइए जिसको लोग समझने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। वर्ड बहुत सिंपल होना चाहिए। जो चीज़ जितना सिंपल होता है उतना ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव होता है और फिर इम्प्रेशन में आता है। तो 3 फेजेज ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। इस प्रोडक्शन में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन होते हैं। प्री प्रोडक्शन के एलिमेंट एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूँ। पहले आता है टॉपिक, फिर दूसरे आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर माइंड मैपिंग, फिर जनरल स्क्रिप्ट, फिर इसके बाद रेकी कर लीजिए, स्पॉट रेकिंग कर लीजिए। फिर इसके बाद जो आपके पास बेसिक जिस इक्विपमेंट के थ्रू आप शूटिंग करने जा रहे हो उसका एक बार ट्रेनिंग जरूर ले लें। आपकी लाइट सही है कि नहीं है, आपके सारे किट्स सही हैं कि नहीं है, आपके जो वेपन्स हैं ना, वी आर ओके विद योर वेपन्स। इसके बाद आप पोस्ट प्रोडक्शन में स्विच करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में एज पर डिसाइडेड वो प्री प्रोडक्शन हम आप उस पर जाते हैं और उस पर जाने के बाद सारे शूटिंग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डायरेक्टर डायरेक्शन। फिर उस पर एज पर सिनेमेटोग्राफर। देखो व्हाट इज द सिनेमेटोग्राफर और कैमरा मैन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिनेमेटोग्राफर और कैमरा मैन। Cinematographer, the kind of the camera director. The cameraman is the person of the camera who is handling the camera. So this is a major difference between cinematographer. Cinematographer is the director of the camera, who will direct the all camera, who will instruct the cameraman. Oh? So उसमें चीज़ें क्या होती है? Then we come forward toward the post production area. Post production area play the major role. Post production have the power change your the real to real scenario. So what are जो भी कुछ करना है, अच्छा करना है, वो आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना विद एडिटिंग टेबल, विद द हेल्प ऑफ द एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आप उस सॉफ्टवेयर में जो आप सॉफ्टवेयर में कहता हूँ कि आप बेसिक सॉफ्टवेयर जरूर सीखें। विदाउट बेसिक सॉफ्टवेयर आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार आप कोई से एडोब प्रीमियर एलिमेंट सीख लेंगे, आप धीरे धीरे FCP भी सीख लेंगे। उसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं जो नहीं सीखा जाए, बट आपको बेसिक मूवी मेकर पहले सीख लीजिए। मूवी में कैसे किया जाता है, उसमें टाइम लाइन सोचिए, टाइम लाइन, व्हाट इज द वीडियो टाइम लाइन, व्हाट इज द ऑडियो टाइम लाइन, है ना। तो वीडियो लाइन में वीडियो जाता है, ऑडियो टाइम लाइन में ऑडियो जाता है। सो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। तो 60:9 दिस इज HD हाई डेफिनेशन एस्पेक्ट रेशियो। HD क्या होता है, रेशियो क्या होता है, 4:3 सेकेंड HD रेशियो, है ना।
सो आप उस रेशियो को डिसाइड करिए। या सेफ सरफेस, कैमरे के साइड में जो बॉक्सेस बन के आते हैं, इट मीन आउट ऑफ कुछ फ्रेम जा रहा है तो वो नहीं होगा, उसके बिटवीन जो अंदर है वो सेफ सरफेस होता है। तो प्रोडक्शंस में मतलब ये मेजर एलिमेंट्स प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन होता है। देन इसके बाद हम इसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या शोकेसिंग करते हैं। सो ये चीज़ें आपके पास चीज़ें आप एक टेलीविज़न प्रोडक्शंस में होते हैं जिसमें आपको करना होता है। अब प्रोडक्शंस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि छोटा सा एक कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको स्क्रिप्ट तो कैमरे में ऐसी क्या सेटिंग होनी चाहिए कि जो चीज़ें आप फील्ड में जाएं तो प्रॉब्लम ना है। तो मान लीजिए कि आप टेलीविज़न प्रोडक्शन कैमरा आपने ले लिया और आप जैसे PD170 ले लिया, तो आप उसको सबसे पहले बैटरी चेक कर लीजिए उसकी बैटरी सही है कि नहीं, और एक एक्स्ट्रा बैटरी आप जो रखें। इसके बाद आप उसमें 2 माइक होते हैं, एक एक्सटर्नल माइक होता है, एक इंटरनल माइक होता है। जो इंटरनल माइक होता है सनगन माइक जो शॉटगन माइक जो उस पर लगा होता है, और एक एक्सटर्नल उसमें हम लगाते हैं साथ केबल के साथ, तो वो चेक कर लें कि उसका आउटपुट इनपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद आप उसको मैनुअली इसको यूज कर रहे हैं कि ऑटो, अगर मैनुअली यूज कर रहे हैं तो आप स्पॉट टू स्पॉट उस पर सबसे पहले कि वाइट बैलेंस जरूर करें। कैमरे को कलर बार जरूर करें, कलर बार में इसमें आता है जिसमें 7 कलर्स जो विजुअल्स में होते हैं, उस कलर को भी उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। कैमरे को चीज़ें दें, आपका कैमरा CCD है या CMOS है चेक कर लें। ये सेंसर, इमेज सेंसर होते हैं कि जो भी चीज़ें अपर्चर से अंदर एंटर करती है, ठीक है, जो आइरिस से अंदर कर रही है, तो वो चीज़ें CCD पे, मतलब अगर आपने सही इसमें लाइट का बैलेंस सेलेक्ट किया तो सही उसका आउटपुट आएगा, वरना कैमरे हमेशा कन्फ्यूज हो जाता है ग्रे और ब्लैक में या वाइट में। तो ये सब चीज़ें को थोड़ा सा आप मेजरमेंट जान पड़ेगा। आप अगर टेप ले रहे हैं तो टेप आप देख लें टेप सही है कि नहीं है। कैमरे का ऑडियो चेक कर लें, ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो का आप सेफ सरफेस देख लें कि सेफ सरफेस उसका सही है कि नहीं है। तो माइक में हिस तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें आपको मेजरली चेक करना पड़ेगा। आपको एस्पेक्ट रेशियो सही करना पड़ेगा, 4:3 रख लें कि 6:9 रख लें। तो ये सब आपका प्रोडक्शन क्या है, 6:9 पे होता है या 4:3 पे होता है, तो एस्पेक्ट रेशियो को भी चीज़ें क्लियर कर लें। तो आइरिस शटर स्पीड पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको जूम की जो जितने की हैं उसे पता चाहिए। एक जूम बहुत तेज फास्ट करता है, जैसे जनरेटर लेस होता है, एक जनरेटर लेस होता है, जनरेटर लेस होता है। जनरेटर वाले में क्या होता है कि उसमें स्मूथली जूम इन या जूम आउट होता है। एक होता है जो फिंगर पे होता है बहुत तेज जूम इन, जो ऊपर एक रिंग में पास होता है, ठीक है। तो फोकस डिफोकस करके देख लें कि ऑटो फोकस क्या होता है, डिफोकस। तो कैमरे में सब कुछ ऑटो हो सकता है, बट जूम ऑटो नहीं हो सकता। कैमरे को ये नहीं पता कि आप किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कैमरे को हर एक चीज़ को आप ऑटो कर सकते हैं, लेकिन जूम कभी भी ऑटो पे नहीं कर सकते। तो आपको ऑटो रिंग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटो करना है और कैसे नहीं करना है। तो ये चीज़ें। और इसके बाद हम आते हैं लाइट पे। लाइट हमने कौन से चूज की है, जैसे सनगन लाइट हम यूज़ कर रहे हैं कैमरे को, और शादी वादी देखा होगा वो हॉट लाइट होता है, हम कूल लाइट लेकर चलते हैं, जिसे फ्रीजर लाइट बोलते हैं। तो लाइट की बैटरी देखनी चाहिए, उसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, कितने देर तक काम करेगी। मैं बीच में देखा मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो क्यों बंद हो गया, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सो आप लाइट पे बिल्कुल ध्यान रख लें। लाइट पे क्या है, आप अपने स्क्रिप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ें, उसके आपके शॉर्ट क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स क्या होते हैं। 7 डेज होते हैं, 7 मेजर शॉर्ट्स होते हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉर्ट, मिड लॉन्ग, मिड शॉर्ट, मिड क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स होते हैं, 7 शॉर्ट्स होते हैं। फिर 3 टाइप्स ऑफ मेजरली हमारे पास एंगल्स होते हैं। एंगल्स में हमारे पास लो एंगल, हाई एंगल एंड वर्टिकल एंगल। शॉर्ट्स हम एक जगह से कंपोज कर सकते हैं विदाउट पोस्चर चेंज, ये बिना हमारे पास कैमरे में ऑप्शन होता है कि हम जूम इन जूम आउट करके एक ही पर्सन का हम शॉर्ट को एक्सट्रीम लॉन्ग, मिड लॉन्ग, क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप करके। बट एंगल में हमें अपना पोस्चर चेंज करना होता है या कैमरे का डायरेक्शन चेंज करना होता है। उसको कभी कभार हमें हाई पोस्चर रखना होता है, हाई एंगल रखना होता है, कभी लो एंगल एज पर रिक्वायरमेंट। टॉप एंगल पे अगर जैसे हम एरियल देखते हैं, शॉट देखते हैं क्रिकेट में, जो कि बिल्कुल टॉप से दिखाए, एरियल शॉट एक वर्ड भी शॉट्स कहते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए।
तो शॉर्ट्स पता होना चाहिए, एंगल्स पता होना चाहिए, थोड़ा कैमरे के बारे में पता होना चाहिए। कैमरे में एनडी फिल्टर से एक बड़ी चीज़ ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है और आयरिस से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एनडी फिल्टर को हम यूज़ करके लाइट को इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो कैमरे में थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए। और कैमरे को आप ट्राईपॉड को बिल्कुल कैसे, ट्राईपॉड में बबल होता है, बबल क्यों सेट करें ताकि वो बैलेंस हो सके। तो क्या ट्राईपॉड 3 पॉड्स होते हैं, उस पर माउंट कहाँ किया जाता है, माउंट कैसे, लॉक कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आप प्री प्रोडक्शन में पूरी चीज़ें सीख लें। और इसके बाद करने के बाद अगर कोई क्वेरी हो तो हम दोबारा एचओडी सर से, तिवारी, प्रोफेसर तिवारी, गिरीश रंजन तिवारी सर से मैं आग्रह करूँगा कि दोबारा मुझे मौका ज़रूर दें और मैं उनका, ताकि मैं आगे की इस पे जो भी चीज़ें हैं उस पर मैं काम करूँ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एचओडी सर, गिरीश रंजन सर और रिसर्च स्कॉलर किशन कश्यप सर। थैंक यू सो मच।